सारी जानकारी हम आपको विस्तार से बताएंगे। अभी जैसे ये भाड़े का मकान होने की वजह से आसपास के लोगों का भी यहाँ पे घर है और इसी रास्ते से प्रतिदिन परिवार के दोनों सदस्यों को अपने घर में एंट्री लेनी पड़ती है। बड़ा तंग रास्ता है। सीढ़ियां भी, कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा दिखाएंगे, पीछे पीछे चले। सीढ़ियां भी बहुत तंग है और बहुत ही इसमें कंबल करके चढ़ना पड़ रहा है। और यहाँ पे ये है परिवार का घर। ये किराए का घर बताया जा रहा है और इसका किराया 1000 रुपए बताया जा रहा है। ये किराया भी वे भरने में कई बार सक्षम नहीं हो जाते। बताया जा रहा है कि कई बार वे किराया भरते हैं और कई बार नहीं भर पाते। अभी घर के अंदर हम चलेंगे और देखेंगे कि घर के अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं है। पूरा स्लोप में ये मकान है और यहाँ पे छत है लोहे की, वो भी काफी पुरानी है, इस पे जंग लग चुका है। घर के अंदर आप चूल्हा देख पा रहे होंगे, कोई गैस सिलेंडर आदि की व्यवस्था नहीं है, लकड़ियों से यहाँ पे खाना पकाया जाता है। बाकी बिजली का कनेक्शन भी है, एक टेबल फैन है और एक बल्ब है। इस तरीके की कुछ मोहन भाई पडियार जी के घर की व्यवस्था है। नमस्कार बेन। બોલો શકુબેન, આ ઘરમાં તમે કેટલા વર્ષોથી રહો છો? ને આપણે કેટલું રહ્યા બોલો ને 5 વર્ષથી રહો છો? હવે આ ઘરની જે પરિસ્થિતિ અમે જોઈ, આ ઘર ભાડાનું છે ને? ભાડાનું છે ઘર. કેટલું ભાડું છે આનું? 1000 રૂપિયા. તમે તો આપો ના મળે તો કઈ નહીં મળે. તમારી સુવિધા થાય તો ભાડું ભરો છો, નકર નથી ભરતા? કરી દે મળે તો ભરવું ના મળે કઈ નહીં. તમે કામ શું કરો છો બેન? ખેતરનું. ખેતરનું કામ કરો છો? તો 50 રૂપિયા રોજ આપે. 50 રૂપિયા રોજ તમને મજૂરી મળે છે? હા, 50 રૂપિયા. અને મોહનભાઈ? કઈ નહીં જતા, ઘેર ને ઘેર. ઘરે જ છે? હા, ઘેર ને ઘેર. હું જાઉં મળે તો. હવે આપણે જે ઘરની પરિસ્થિતિ જોઈ બેન, ઘરની પરિસ્થિતિ બી એટલી સારી નથી. પતરા ગરમીમાં ઘણા તપતા હશે, વરસાદમાં પાણી પડતું હશે, એવું કઈ થાય છે? બસ છોકરો લાવી નાખ્યો છે ને ત્યાં 2000 નો. શું કરું તમે તોય પડાશે પતરો કોને નહીં જોયા તમે? હા બધા શું કરવાનું, કોઈને કોણ કમાવા જાય? શું કરું? તો અત્યાર સુધી બેન તમારું રોજગાર ને ગુજરાન કઈ રીતે ચાલતું હતું? ભરણ પોષણ કઈ રીતે થતું હતું? આપણે ખાઈએ ના આપણે ભૂખી બેસી રહેવાય, ભૂખાઈ હોઈ રહીએ. શું કરવાનું તા? આપણે ખાવાનું ના આપણે લઈ આવું. ભીખમાં બધા ના જમણ બધો આટો તો આપણે ખાઈ લઈએ બે જણા. એટલે આડોશ પડોશ માંથી જે ખાવાનું મળે તમે ખાઓ? શું કરવાનું, આપણે રોજ ખાવાનું મળી જાય દાદા, કે પછી ક્યારેક ક્યારેક ન મળે? મળી જાય ખાવાનું. દાદા તમને શું બીમારી છે? આપણે કેળો હાફ ચડે છે ને કેળોમાં દુખાવો છે. હવે તમારા પરિવારને જગતગુરુ તત્વદર્શી સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા અન્નપૂર્ણા મુહિમના તહેત રાશન સામગ્રી આજે વિતરણ કરવામાં આવશે અને લગભગ 15 થી 20 પ્રકારની અલગ અલગ જે સામગ્રીઓ છે, જેમ કે દાળ, ચોખા, લોટ, બટાકા, ડુંગળી, આવી 20 પ્રકારની નાવાના સાબુ, કપડા ધોવાના સાબુ, આવા સામગ્રી તમને આપવામાં આવશે. તો તમને કેવું લાગે છે આજે તમને આ સામગ્રી મળશે? આવશે આવશે. હા, બધું મળશે. ચોખા, દાળ, બટાકા, ડુંગળી, સાબુ, નાવાના બધું મળશે. શું કહેવા માંગો છો તમે? આપશે. કેવું લાગ્યું તમને આ બધું મળ્યું? તમને હું લાગ્યું કે આપશે મને. દાદા કેવું લાગ્યું તમને આજે સંત રામપાલજી મહારાજ તમારી આજે? સારું લાગ્યું. ભગવાન હાલે હાલશે ભગવાન. ભગવાન મળ્યા આપશે ને તારે મળ્યું એમ કહું ને, મળ્યું ભગવાન મળ્યા? હા, ભગવાન મળ્યા. તારે તો ભૂખે જ નહીં બેસી રહ્યા. એવું કહેવામાં આવે છે કે ગરીબોનો ખાલી ભગવાન જ હોય છે. આ વાત ખરેખર આજે સાચી થતી હોય એવું લાગે છે? હા, સાચી સાચી. संत रामपाल जी महाराज ना रूप में भगवान ज अपनी सहाय कर रहे हैं। भगवान सहाय करे। तो दर्शकों, इनका ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो आज इनकी मदद की जा रही है उनसे वे बेहद खुश हैं और वाकई में ये बात उन्हें सच होती दिखाई दे रही है कि संत रामपाल जी महाराज ही भगवान के रूप में आकर के इनकी
जो है मदद कर रहे हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि अब तक इनकी जो स्थिति थी वो बेहद खराब थी। आसपास के अड़ोस पड़ोस के लोग थोड़ा थोड़ा सा इनको जो खाना देते थे उससे उनका पेट भरता था। कभी खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था। और इनके घर की जो स्थिति आप देख पा रहे हो, भाड़े का जो ये मकान है इसका 1000 किराया बताया इन्होंने। और इनका ये भी कहना है कि ये किराया वे कभी कभी ही भर पाते हैं, कभी कभी नहीं भर पाते, क्योंकि ये जो परिवार में आप देख रहे हो केवल बहन जी ही अकेले, ये माता जी अकेले ही रोजगार का कार्य करने जाते हैं खेतों में। और एक दिन का इनको केवल 50 रुपए मेहनताना मिलता है, जिसमें उनका घर खर्च नहीं चल पाता। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इनकी मदद करी है, इनसे वे बेहद खुश है, बेहद संतुष्ट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर्स है वो अन्नपूर्णा मुहिम की जो भी सामग्री है वो लेकर के यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पे खटिये के ऊपर वो सारी सामग्री एक एक करके रख रहे हैं। वे हम आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या क्या सामग्री यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार को मुहैया करवाई जा रही है, उनको दी जा रही है। वे सेवादार एक एक करके सारी बिछा देंगे, उसके बाद हम आपको सारी सामग्री एक एक करके बताएंगे कि क्या क्या चीजें हैं। देख पा रहे हैं ये इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आज दी गई है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। इस पे जो स्टिकर लगाए गए हैं उस पे लिखा है अन्नपूर्णा मुहिम निःशुल्क सेवा सामग्री, यह सामग्री बिक्री हेतु नहीं है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कुल मिलाकर के ये 15 से 20 आइटम्स होंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार को आज दिए गए। दर्शकों